أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم। कसम है ज़माने की कि हर इंसान खसारे में है सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और नेक अमल किए और हक़ की तालीम दी और सब्र की तलक़ीन की। जज़ाकल्लाह। Assalamualaikum. I welcome you all on behalf of POB faculty. I am Dr. Hina Nawaz. I am consultant ophthalmologist at POB Eye Hospital. I have been working here for around 3.5 years now. And we at POB strongly believe in transferring of knowledge. And this hands-on workshop is just a small step towards our goal. And hopefully by the end of the session, you will learn something new and help your own patients utilizing the knowledge that you gained today. So my first presenter is Dr. Haseeb. He's consultant ophthalmologist and he is a supervisor of future ophthalmologist at POB Eye Hospital. Over to you, sir. Assalamu alaikum. My name is Dr. Mohammad Haseeb. I am working here as a consultant glaucoma in POB Eye Hospital, Karachi. So our topic of presentation is trabeculectomy with MMC. MMC means metamycin C. The hands-on trabeculectomy. So we have got two videos. So you will concentrate on the videos in order to perform the hands-on perfectly. Okay. So my topic is trabeculectomy with MMC. Okay, before starting the topic of trabeculectomy is under the umbrella of filtration surgeries. So filtration surgeries had got three types: full thickness, partial thickness, and non-penetrating surgeries. So today our topic is partial thickness, in which we are going to cover the trabeculectomy. Okay, understand? So by introduction, in the trabeculectomy, we are going to make a small fistula between anterior chamber and subtenon space. So we are going to make a fistula between anterior chamber and subtenon space in order to lower the IOP. So by definition, it is a surgical procedure featuring a partial thickness scleral flap that creates a fistula between anterior chamber and subconjunctival space for filtration of aqueous and creation of conjunctival bleb in an effort to lower the IOP. So our main aim is to make a fistula, and which is going to create the communication between the anterior chamber and the subtenon space. So this is the mechanism. First of all, we will create the fistula between the anterior chamber and the subtenon space. So aqueous from the anterior chamber goes from the fistula into the subtenon space, and from the subtenon space it is collected to the episcleral and the conjunctival veins, and from there it will drain into the superior ophthalmic veins. So it is written here, allows aqueous outflow from the anterior chamber to the subtenon space through the fistula and the scleral flap borders, and finally collected into the episcleral and the conjunctival veins. A functional filtrating bleb forms at the sclerotomy site, which appears as a blister-like elevation of the conjunctiva, which we call the bleb. Indication of trabeculectomy is, as you will all know, failure to conservative therapy to achieve good IOP control, avoidance of excessive polypharmacy, progressive deterioration of despite the seemingly adequate IOP control, poor compliance, primary therapy if the patient wants, patient's preference if they want surgery and avoid the medications. And the contraindications are blind eye, active inflammation, active anterior chamber new vessels, and extensive conjunctival scarring, and the thin sclera prior surgery, just like chemical injuries. What is the preoperative evaluation? You have to evaluate the patient from the vision up to the optic disc.
You will take the vision, you will take the IOP, you will take the gonioscopy, you will take the fundus photography, you will take the optic nerve head analysis by the HRT or OCT, and you will check also the IOP. Take the complete systemic evaluation, you will rule out the diabetes or hypertension or control it. Medication which affects the ocular surface and disrupt the blood aqueous barrier should be stopped 1 to 2 days, 1 to 2 weeks before surgery, and prophylactic peripheral iridotomy in angle closure diseases. And conjunctival mobility, you will must check. Mobility should be checked preoperatively to plan the site of surgery. You will put pilocarpine eye drops before surgery in order to constrict the pupil. Preoperatively, some of the surgeons give the betadine drops for the vasoconstriction of the vessels. Scrub with pyridine, and especially in the uveitic glaucoma, you will put the patient on steroids in order to reduce the inflammation or to stop the inflammation. You will give anesthesia. Most of the surgeons giving the periorbital or the retrobulbar. Most of the surgeons are giving the facial blocks. Most of the surgeons are doing in the general anesthesia. While the topical anesthesia and the subconjunctival anesthesia is very difficult. Now we are playing the picture. We are playing the movie now, small movie. Sorry. This patient we will operate. On the video, please. Okay. This is the video. We performed this case last week under the general anesthesia. We are applying the bridal sutures. Now we are making dissection of the conjunctiva and the tenon both together. This is very important step. You have to take the conjunctiva and the tenon both together. Separate the conjunctiva and tenon from the limbus. And you will give time on the dissection. This is very important because the bleb is formed here. Bleb will be formed here. Now we are doing the deep dissection. This step is very, very important. We are giving the dissection between the recti muscles, between the superior rectus and the lateral rectus, then between the superior rectus and the medial rectus. And after that, we are applying the cautery to the bleeders. You have to create the all avascular zone. Now you are making the scale flap partial thickness by 11 number blade because the 11 number blade is sharper, and by 15 number blade you are going to dissect the sclera, and you have to take it towards the limbus until the color of the deep side will be changed up to bluish color. After that, you will apply the metamycin C. The role of the metamycin C is an anti-fibrotic agent to reduce the post-operative fibrosis of the bleb. You will apply it for the 2 minutes, then wash with the normal saline. 20 ml normal saline is sufficient for the washing. And this is a very important step. You will do the deep sclerotomy by 11 number blade. This is a very difficult step, but you will learn with the passage of time. You will put the small amount of Macolol drops into the anterior chamber in order to constrict the pupil. Then you will complete the deep sclerotomy, and you will do the peripheral iridectomy. The size of the peripheral iridectomy must be larger than the deep sclerotomy. Now you are taking the air from the anterior chamber. A small air bubble will be remain in order to form the anterior chamber. Now you are closing the flap with the sutures. Most of the surgeons are preferring the 8-0 Weichel
Some are choosing the 8-0 SIL depending upon the skills. Most of the surgeons are doing the 2 sutures. Most of the surgeons are doing the 4 sutures depending upon the case to case. But the sutures must be tight here. We are applying the 2 sutures. And look, the knot is towards the site of limbus. At the end, you will take the knot towards the site of fornix in order to reduce the post-operative inflammation. ये आपने कट किया, आप देखें नॉट हमने इसको बरी किया मगर ये स्टेप था नहीं इसके अंदर. नाउ यू विल कंजक्टिवा को आप सूचर करेंगे विद द लिम्बस विद द कॉर्निया ताकि एक अच्छे सूचर आ जाए आपके पास. आप देख रहे हैं आपका यहाँ पे ब्लैब भी बन रहा है आपका ना, ब्लैब भी बना हुआ है, पीआई भी विजिबल है, एंटीरियर चैम्बर इज फॉर्म्ड. 8-0 सेम सूचर, 8-0 सेम सूचर. ये हमने यहाँ पे एक लिम्बस पे टैग किया 10 o'clock पे या 11 o'clock पे, और एक हम टैग कर देंगे इसको एट 2 o'clock पे. ये मेरे ख्याल से वीडियो अराउंड 4 to 5 मिनट्स की थी, तो हमने ये ऑपरेशन अराउंड 15 मिनट्स में कंप्लीट किया था. आखिर में जो रिमेनिंग आपका कंजक्टिवा है उसको आप सूचर कर दें. यहाँ पे आप एक सूचर भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा है तो यू विल गिव 2 सूचर्स. यानी ब्लैब जी डिपेंडिंग अपॉन मगर इट्स बेटर टू अप्लाई द 2 सूचर्स, क्योंकि रेडियल थोड़ा सा भी आ जाए तो इट्स बेटर टू अप्लाई द 2 सूचर्स है. तो आप एट द एंड ऑफ द सर्जरी देखेंगे कि ब्लैब भी बना हुआ है, डीप स्क्रोटमी साइड भी विजिबल है, यहाँ पे एंटीरियर चैम्बर भी फॉर्म्ड है. थोड़ा सा एयर बबल हमने छोड़ा हुआ है ताकि एंटीरियर चैम्बर फॉर्म्ड रहे, और ये इतना एयर बबल है कि ये पीपल को ब्लॉक नहीं करेगा, ना पीपल ब्लॉक करेगा ना पीआई ब्लॉक करेगा. सेकेंड डे आपको बिल्कुल क्लियर मिलेगा. आपको पोस्ट ऑपरेटिवली आप इसको वॉश करने के बाद यू विल गिव द डेक्सा. लुक द आई सॉफ्ट, आपने डेक्सा इंजेक्ट किया एंड द डायलेटिंग आई ड्रॉप्स. Okay, atropine eye drops or cyclophene eye drops. Now, any question? Can we use mitomycin swab? Can we inject the mitomycin subinjector? No, never. Nowadays it is getting. No. Nowadays, what I am telling you, what happen nowadays, some people they are doing the trail on the first day, and the second day some people they are injecting small amount of mitomycin. Even the metamycin C को आपको लिम्बस पे भी अटैच नहीं करना, क्योंकि लिम्बस पे आपके स्टेम सेल्स होते हैं. अगर आपने लिम्बस पे भी अटैच किया मेटामाइसिन सी के स्वाग को, तो उसकी पोस्ट ऑपरेटिवली जो हीलिंग होगी वो कम हो जाएगी आपकी. तो मेटामाइसिन सी को हमेशा आपको अप्लाई करना है अंडर द टिनॉन, अंडर द कंजक्टिवा भी नहीं लगाना आपको, अंडर द टिनॉन. नहीं, अगर आप वीडियो देखें प्रीवियसली अगर हम लगाते हैं. अच्छा, ब्राइडल सूचर की भी बड़ी इंपॉर्टेंट है. अगर आप सही लगा नहीं सकते तो आप इसमें आपको प्रॉपर एक्सपोजर नहीं मिलेगा. आपको स्पेस नहीं मिलेगी. ये जो आप डिसेक्शन कर रहे हैं ना, अगर आप ये स्टेप देखें तो हमने इनिशियली हमने कंजक्टिवा को और टिनॉन को एक साथ ले लिया. आप देखें ना, नीचे से वाइटिश स्ट्रक्चर आपके विजिबल है, इट इज़ द टिनॉन. अगर आपने अप्लाई करते हैं मेटामाइसिन सी अंडर द कंजक्टिवा, तो पोस्ट ऑपरेटिवली थिनिंग ऑफ द ब्लैब के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है. वो उसको बिल्कुल थिन कर देगा. जी, वो उसको थिन कर देगा, और बाद में ब्लैब की I don't know how they are using mitomycin in injectable form, because you'll have to just wash it out. या तो उसकी देखें, अगर कोई यूज़ करता है तो उसकी कंसंट्रेशन बहुत कम होगी. नहीं, वी आर डूइंग, हम जो कंसंट्रेशन यूज़ कर रहे हैं 0.2 to 0.5 मिलीग्राम पर ml. माइट भी उसकी कंसंट्रेशन इतनी लो हो के आप उसको कर सकेंगे. दूसरी थिंग, आपने स्लैब में सूचर लगाए,
तो ये कोई ऐसे सूचर भी लगा सकते हैं जिसको इसका हेड रखते हैं, डेड हो जाए तो मतलब कि उसको बाद में हम रिलीज कर सके। देखिए वो लेजर भी काम होता है। आप मोस्ट अगर आप टाइट सूचर्स हैं तो हमारे पास लेंस अवेलेबल हैं जो कि सूचर लाइसेंस कर सकते हैं। और नंबर 2, आजकल एडजस्टेबल सूचर्स भी आप लगा सकते हैं कि पोस्ट एडजस्टेबल सूचर्स भी लगा सकते हैं कि पोस्ट ऑपरेटिवली डिपेंडिंग अपॉन योर एक्वस आउटफ्लो के पास आप उसको क्या कहते हैं टाइटिंग उसको कर सकते हैं, उसको टाइटिंग कर सकते हैं उसको। सर कॉर्निक बेस और लिम्बर बेस में कौन सा ब्लड ज़्यादा आगे तक चलता है? देखिए अगर आप कंपैरिजन करें ना तो डिपेंडिंग अपॉन द सर्जन्स, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द सर्जन। मगर अक्सर कहते हैं कि जो फोनिक्स बेस है वो ज़्यादा सेफ़ है फोनिक्स बेस, क्योंकि आप जो इसमें डिसेक्शन कर रहे हैं ना बहुत कम कर रहे हैं। अच्छा, लिम्बल बेस में तो आप अराउंड 12 मिलीमीटर या 10 मिलीमीटर पीछे जाके डिसेक्शन करेंगे। और देखें आपने पोस्ट ऑपरेटिवली जो सूचर सप्लाई करेंगे क्या कहते हैं फोनिक्स बेस के अंदर, उसमें आप हार्डली 2 सूचर्स और 3 सूचर्स अप्लाई कर रहे हैं और वो विजिबल भी है। अब दूसरे जो आप करते हैं लिम्बल बेस करते हैं उसमें तो बाकायदा आपको पूरे कंटिन्यूस सूचर्स आप अप्लाई करना पड़ेंगे आपको। और नंबर लास्ट बात ये है कि हमें यहाँ पे जो लिम्बस पे ना स्टेम सेल्स होते हैं, तो स्टेम सेल्स की हीलिंग बहुत अच्छी होगी अगर आप कंजक्टिवास पे रखते हैं और एमएमसी को सही तरीके से वॉश करते हैं तो इसकी हीलिंग बहुत प्रॉपर होगी इसकी। दिस इज द डिफरेंस। एक रीज़न ये भी देते हैं कि अगर आप मतलब फोनिक्स बेस देते हैं तो मतलब कि फिर जो आपका मतलब कि ग्रेविटी की वजह से जो फ्लो होता है अगर लीक हो कंडक्टिवा में तो वो मतलब कि लीकिंग इतनी नहीं आती है लैब में। ये रीज़न देते हैं मतलब। इसमें जो है ना सारा देखिए सीपेज थोड़ा बहुत लीकेज होता है इस इंजेक्शन में, मगर नॉर्मली इट विल रिजॉल्व विद इन अ वीक, क्योंकि उसकी हीलिंग इतनी अच्छी हो जाती है कि वो हो जाता है, रिजॉल्व कर जाता है। और थोड़ा सा एक और चीज़ ये है कि ये जो आप लिम्बस बेस्ड और फोनिक्स बेस्ड जो आप कर रहे होते हैं ना उसमें टाइम का बहुत फर्क है। जब आप लिम्बस बेस्ड आप सर्जरी कर रहे होते हैं उसके अंदर आपकी स्विचिंग बड़ी मेटिकुलस होनी चाहिए और दैट टेक्स टाइम। तो जिनको ज़्यादा सर्जरीज करनी होती हैं नॉर्मली दे प्रेफर टू गो विद फोनिक्स बेस्ड। उसमें चूँकि आपने 2 स्विचर्स आपने दोनों कॉर्नर्स पे लिम्बस पे लगाना होता है और जो रेडियल कट है आपने सिर्फ उसको श्योर करना होता है, मेक श्योर। एक स्टेप इसमें मुझे लगा कि ये कम है, उसमें हम नॉर्मली ये करते हैं कि जब आप एंट्री देते हैं एंट्री चैम्बर में तो आप लेफ्ट साइड से साइड पोर्ट से एक आप पैरासिंटेसिस आप बनाते हैं। ये साइड पोर्ट्स को एंड ऑफ द सर्जरी पैरासिंटेसिस से आप फ्लूइड को गश करते हैं, वो उस पोर्ट से आके ब्लड को ऑन द टेबल फॉर्म करता है। आप उसी वक्त आप फ्लोरोसिन स्ट्रिप लगा के सिग्नल टेस्ट को चेक कर लेते हैं कि कहीं पे एक आध सूचर की मजीद ज़रूरत है या नहीं है। लेकिन डॉक्टर हसीब की ज़ाहिर के एक्सपीरियंस है और बहुत मिनिमल कट्स के साथ इन्होंने ये किया है, तो इनको पता है कि इसके अंदर कहीं पे कोई लीकेज के चांसेस नहीं है। वरना आमतौर पे उस पैरासिंथेसिस से आप फ्लूइड गश करके ब्लड फॉर्म करके आप उसी वक्त देख लेते हैं कि एंटीरियर चेम्बर मेंटेन होना चाहिए। 2-3 चीज़ें देखनी होती हैं कि आपके एंड ऑफ द सर्जरी आपका चेम्बर मेंटेन हो। अगर ओवर फिल्ट्रेट कर रहा होगा तो एंटीरियर चेम्बर आपका फ्लैट हो जाता है विच विल क्रिएट प्रॉब्लम पोस्ट ऑपरेटिवली। तो आपका इतना टाइट भी नहीं होना चाहिए स्क्लेर फ्लैप कि वहाँ से फिल्ट्रेशन ही ना हो रही हो, ब्लड भी ना बन रहा हो। तो ब्लड भी बने, एंटीरियर चेम्बर भी आपका मेंटेन हो जाए और वहाँ पे सिटल नहीं हो। 3 चीज़ें चेक की आप उसके बाद टेबल से उठा सकते हैं। शायद इसलिए ये लोग कहते हैं कि जितना भी हम एंटीरियर चेम्बर की फिजियोलॉजी को मतलब चेंज ना करें ना तो इट विल बी बेटर टू फॉर्म द कैटरेक्ट। तो इसीलिए मतलब यूजुअली मतलब एंटीरियर नॉर्मली देखें कि अगर आप एंटीरियर चैम्बर पैरासेंटेसिस करते हैं तो मैंने अक्सर देखा कि पोस्ट ऑपरेटिवली वहाँ पे सैनिकीज बन जाते हैं। अगर आप थोड़े केसेस की सिलेक्शन करें ना तो पोस्ट ऑपरेटिव जहाँ फॉर एग्जांपल यू आर डूइंग द पैरासेंटेसिस फ्रॉम द 9 o'clock और 3 o'clock से वहाँ पे आप अक्सर देखेंगे RS आके, क्योंकि प्रेशर अगर थोड़ा सा ज़्यादा होगा स्टक कर जाएगा। तो अगेन प्रॉब्लम, यानी आप मल्टीपल एनाटमीज़ को जितना आप ज़्यादा टच करेंगे उतना ज़्यादा आप फ्यूचर में प्रॉब्लम्स वो करेंगे फेस करेंगे। तो ये हमारा ये था कि हमने एक लेसर टाइम के अंदर और कम से कम उसकी एनाटमी को डिस्टर्ब करते हुए बेसिक क्या था, वी आर गोइंग टू मेक द फिस्टुला। हमें फिस्टुला बनाना है बिटवीन द एंटीरियर चैम्बर एंड द सबटेन्यूनस स्पेस ताकि वो वर्किंग करे और पोस्ट ऑपरेटिवली हमारा जो ब्लैब है वो फंक्शन। पोस्ट ऑपरेटिवली इसके ड्रॉप्स की क्या तरतीब रखते हैं, कितने दिनों तक आप इन देखिए जो ड्रॉप्स हमारे पास जो हैं एंटीबायोटिक एंड स्टेरॉइड्स, इनिशियली वी कैन गिव द 2 hourly, बट मैं तो आफ्टर 1 day और 2 days के बाद 4 times a day कर देता हूँ।
साइक्लोप्लेजिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन गिव अप टू 1 वीक, क्योंकि जितने स्ट्रॉन्ग इनिशियली हम ये करते हैं कि पेशेंट को एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन पोस्ट ऑपरेटिव 1 ड्रॉप एट्रोपिन डाल देते हैं, तो वो 7-8 दिन 5-6 दिन अपना काम करती रहती है ना। और स्टेरॉइड पोस्ट ऑपरेटिवली कितने वीक्स कंटिन्यू रखते हैं? आइडियली स्टीरॉइड्स को 2 मंथ्स तक करना चाहिए, एटलीस्ट 2 मंथ्स तक करना चाहिए। एंटीबायोटिक यू कैन स्टॉप आफ्टर 3 वीक्स और 4 वीक्स, मगर स्टीरॉइड्स को यू हैव टू कंटिन्यू अप टू 2 मंथ्स तक करना चाहिए। लो डोज में हो, लेकिन आपको एक और फंक्शनल ब्लड के लिए पोस्ट ऑपरेटिव के लिए आपको मस्ट है कि आप यू विल एग्जामिन द इंट्राऑपरेटिव प्रेशर, यू विल एग्जामिन द ब्लड, आइडियली ईच एंड एवरी विजिट पे यू कैन डू द वेनोस्कोपी इन ऑर्डर टू सी योर डीप स्क्रोटमी एंड PI side, each and everything will be there. Okay, thank you. Indeed, it was a very thorough presentation, especially I like the video part. So next presentation is by Dr. Riaz, and he has been working as an ophthalmologist for over 20 years, sorry. And he has been serving in ophthalmology internationally and nationally, and we are lucky enough to have him here today. So over to you, sir. Assalamu alaikum. Today, thank you so much. I am Dr. Riaz, and I am working as a consultant ophthalmologist in POB Eye Hospital. So, I am working in medical retina and also in the glaucoma last 3 to 4 years in POB Eye Hospital. So, I am very thankful to POB and my seniors, Dr. Shayan, and today Dr. Abdul Muttaqi is here also. He is the counselor of the CPSP, and he is the professor of general surgery. So he will give you the introduction of the PIMA also, and he is the president. Currently he is the president of PIMA Karachi. So today we are going to start. This is the hospital where I am working. So my topic is that we how to make it workable, because we are actually we are working against the nature. We have to make a fistula, as Dr. Hasib told, and we have to work against actually what is the main thing? Healing. Healing is our enemy in the trabeculectomy. So today I want to ask you that when you are going to plan for the surgery for the trabeculectomy, so what you are going to discuss with the patient, not from this side. So what is in your mind? Can anyone tell? Counseling, like we should have a counseling session with the patient, one-on-one, explain the realistic expectation, पहले तो उसकी विजन पता होनी चाहिए। मैं एक्सप्लेन करूँ कि उसकी नज़र बेहतर नहीं होगी, मगर जितना डैमेज पहले हो चुका है वो तो हो रहेगा, मगर हमें मज़ीद आगे डैमेज से रोकना है। हो सकता है आपके कदर कम क्लियर कर दिए जाएँ और हम अपना मकसद समझाएंगे कि लाइक वो रूटीन डेली एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। कोई और बात ऐड करना चाहिए? भी हम करते हैं बेसिकली हम। हाँ। लॉस हो चुका है उसको हम जो है क्लियर होने कर सकते हैं, लेकिन जो फर्दर डैमेज है उसको हम अगेन फर्दर ठीक है। एक्चुअली होता ही है ना कि जब हम ट्रैप कर रहे होते हैं तो मेरी जो वो है हैबिट है वो ये है कि मैं मरीज़ को सर्जरी करने से पहले आई एम एक्सप्लेनिंग हिम व्हाट इज़ द प्रोसीजर, वन थिंग, फिर मैं दूसरा उससे पूछता हूँ कि वेयर ही इज़ लिविंग, क्योंकि सर्जरी के बाद आफ्टर ट्रेबेकुलेक्टमी यू हैव टू कम, एटलीस्ट मैं उसे कहता हूँ कि 1 महीने तक जब भी मैं आपको बुलाऊँगा आपने आना है, क्योंकि देखें इसमें सर्जरी में बाज़-औक़ात आप रिज़ल्ट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस you have to face. If you are going to do the surgery, you have to face the complication. तो जो टाइम पीरियड है ना, क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि अगर पेशेंट आपके पास फॉलो नहीं करता देन होता क्या है कि फेल बिलीव के साथ आपके पास आता है। चलें स्टार्ट करते हैं आगे। ये आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द सर्जरी बिकॉज द थ्योरेटिकल पार्ट
मेरा और डॉक्टर हसीब का जो द डिफरेंस दैट आई एम डूइंग दिस पेरिटोमी सेम लाइक डॉक्टर हसीब. सो in this case my patient का इसका exposure is very nice, so I didn't put any suture, but usually I am doing the bridal suture, so I am cauterizing this, and my procedure is a little bit lengthier than Dr. Hasib. So I am taking more time. I think I am taking 30 minutes to complete this procedure, 30 to 35 minutes or sometime 40 minutes. So I am cauterizing this scalera, then sclerostomy I am usually doing for 3.5 millimeter with the rectangular, and my but I am using 11 blade up to this, and then I am using the crescent knife. So I am happy with this knife. My precision so little bit difference, so I am happy with this crescent knife, and I am trying to make the scale thinning like 1.3 up to half thickness. No, 1.3 thickness as compared to one third. Sorry, one third of the scalera. So I am using this mitomycin 0.25 to 0.3 milligram per ml. So I am usually putting 2 to 3 minutes up to the complication, and I am making the paracentesis after this, and then I am using the Kelly punch for the deep sclerotomy. I am happy with this. It makes you Yeah, easier. it is so is a good exposure of the iris. So with the see Easy with a skilled hand. Yeah, it looks easy. I can't do. Definitely. I'm doing many surgeries, but can't do. so I am using the 10-0 nylon for closing, and usually I am putting 2 sutures and in the corners. पैरासेंटिस बताता हूँ अभी मैं आपको. पैरासेंटिस का रीज़न ये है कि व्हेन आई एम फिनिशिंग द सर्जरी, सो आई एम सीइंग द पेटेंसी ऑफ द माय ब्लेब एंड उसका जो पेटेंसी है, और समटाइम ऐसी शेलो होता है तो उसको फॉर्म करने में आई एम कंफर्टेबल. इस सर्जरी में देखिए मैंने सुचर इसको मैंने फील किया कि लूज़ है, या तो देन मैंने उसको काट के दोबारा, और मैं स्लाइडिंग सुचर यूज़ करता हूँ. सिंगल नॉट, देन रिवर्स सिंगल नॉट, एंड देन आई एम पुलिंग द बिगर पार्ट. Okay, that makes it tight. That makes it tight, yeah. So even the little I am using to close the conjunctiva with the 10-0 nylon. Really? Yes, With the loops. same suture I am using for that. With the loops or under microscope? Under microscope. Who am I saying? Noise.  Which needle do you prefer? Spatulated or round Spatulated. body? No, I am using the spatulated. I know. It's very amazing because it's spatulated needle. I always feel that it gives bigger holes while you are doing suturing on the conjunctiva. It basically cuts. And round bodied, it gives you very Precise. precise and So this surgery I done and 15 days before, because we have long dissection last week in the National Hospital, and
with Dr. Imran. He's doing the, I'm doing the fornix press and he's doing the limbal press. So we have divided. You always does Yeah. limbal based. So I'm showing you my some post-op cases. The bleb, how it works. Okay. This one patients, see what is the disc cup disc ratio of this patient, and I did the surgery for this patient. He came to me at that time. He came to me with the 30 pressure. With 30 pressure. With 30 pressure. So I offer him for the surgery. Now, alhamdulillah, he is around 10. My target IOP is 10 or 11. According to the situation, and other thing, my target is that कि मैं उसको ना फ्री ऑफ ड्रग कर दूं एंटीग्लूकोमा, क्योंकि हमारे पास जो मोस्टली इधर पेशेंट आते हैं ना, दे आर वेरी पुअर एंड एंटीग्लूकोमा मेडिकेशंस आर वेरी कॉस्टली, इकोनॉमिकल बर्डन होता है और कंप्लायंस भी नहीं है। तो ये मेरे कुछ हैं पोस्ट ऑप। अब देखें इस ब्लेब को, आप देखें सब अच्छे नहीं होते पोस्ट ऑप। इसमें देखें इस ब्लेब में क्या फर्क है, ये वेस्कुलराइज्ड ब्लेब है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये फेलियर की तरफ है, ठीक है, हील हो रहा है। तो मैंने जो आपसे शुरू में बात की थी ना कि वी आर वर्किंग अगेंस्ट दैट, तो ये हमारी वो है कि अब इसमें इस पेशेंट का जो आईओपी है ना, इस वक्त जो है 22 है विदाउट मेडिकेशन। तो मैंने फिर इसकी मेडिकेशन शुरू की है। तो इसके लिए मैं प्लान कर रहा हूँ कि इसकी नीडलिंग, ठीक है। अब देखिए ये कितनी कप डिस्क रेशो है, अल्हम्दुलिल्लाह गुड किया है, वर्किंग ग्लव। ये देखिए एक और है ब्लेब, देखें ट्रांसपेरेंट है और नॉन वेस्कुलराइज्ड है। उसकी कप डिस्क रेशो देखें आप कितना ज़्यादा है। अभी इस मरीज का जो प्रेशर है ना, वो जो है वो 9 है। एक और मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। इस एक यंग ये भी देखें ना, ये इसमें भी, ये भी उसमें जा रहा है, इसमें भी वेसल सब ग्रो हो रहे हैं, ठीक है। क्या तुमने जितने ऑपरेशंस किए सब दिखाओ? नहीं बस ये कुछ है, सब नहीं दिखा रहा। ये आइडिया देना चाह रहा हूँ। अच्छा ये पेशेंट आप लोग देखेंगे, अब ये पेशेंट मौजूद है, इसकी दोनों आंखों की मैंने सर्जरी की है। अच्छा इसकी मैं सिर्फ आपको थोड़ा करता हूँ, देन आई एम फिनिशिंग। ये वाला जो पेशेंट है, ये बच्चा आया था, he have the secondary glaucoma, steroid induced glaucoma। So ये आया है मेरे पास, trip done somewhere else, then his IOP was 36 and 0.9 की कपिंग है इसकी। and so मैंने इसका मतलब देखा, he's a young, इसकी उम्र तकरीबन he's around 20। so I did the needling। okay. After needling, अब इसकी विजन जो थी ना 0.9 कपिंग के साथ 6.9, IOP बढ़ ज़्यादा है। देन आफ्टर नीडलिंग आई सॉफ्ट और काउंटिंग फिंगर। तो फिर मैंने जो है वो अपना मतलब मरीज यंग 6.9 से काउंट फिंगर हो गया। सो अब क्या करें? अच्छा मैंने इसको क्या किया था कि इवन इंट्रावेटर उसमें ब्लेब में एविस्टिन भी लगाया था। देयर आर सम स्टडीज कि इसको उसके लिए। तो फिर आफ्टर 2 वीक्स अब मैंने इसको फॉलो किया, इसको फेस किया, इसको हमने फॉलो किया आस्ता आस्ता। इसको कहा कि भाई आपने आना है, वीकली इसको फॉलो पे रखा। इसका आईओपी जो है वो जो बिल्कुल 0 था, वो स्टार्टेड आफ्टर 2 वीक्स में 10 हो गया। आई एम हैप्पी। मैंने कहा ठीक है, अब तुम 1 महीने के बाद आना। 1 महीने के बाद आया, फिर 36। तो मैं अब क्या करूं कि आई सॉफ्ट, फिर 36, देन आई डिड हिज रीट्रेप। ओके, ये ठीक है। नाउ लास्ट 2 इयर्स, अभी इस लास्ट ट्यूसडे ही केम टू मी। इसका आईओपी विदाउट मेडिकेशन एंड आई डिड हिज रीट्रेप।
So he is in my follow-up. 2 साल से आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह. So Sir, retrap your Sir, vision उसी क्या है location पे या हाँ? different location पे किया retrap? जी. क्या करें? इसका विजन क्या है? 6'9" है अभी बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह. थैंक यू. हाँ, डॉक्टर अब्दुल्ला मुत्तकी. So I'm going to invite Dr. Abdullah Muttaqi to introduce the PIMA. Okay, so this is a workshop. We are thankful to PIMA. They are organizing this workshop. So PIMA, President PIMA Karachi today with us. So he will introduce PIMA to you. सारा टाइम आपका है. Bismillahirrahmanirrahim. It's a great honor and opportunity to address the ophthalmic fraternity. It's a good opportunity for me, and I'm happy to see the surgery. As I said in between, I can't do this area. I'm doing surgery in multiple areas. You know, the general surgeon doing from head to toe, everything in abdomen, doing opening the thorax, and doing surgeries. A small structure and a bigger structure. All we are dealing, but so a nice surgery. I'm unable to do it. ये तो सीख ले. It's not the age to learn the new surgeries right now. So I'm happy to see all these things, and you're welcome here with the PIMA workshop, with the POB. In as already told, a few minutes for the introduction of the PIMA. As already I'm been humbled and honored, being invited by the Dr. Zakir Chowdhury and Dr. Shayan and Dr. Reyaz and all of you. And I'm very much happy and thankful for all of you. तो PIMA की थोड़ी सी बात बस मुख्तसर करके मैं बात खत्म करूँगा. PIMA जो है वो एक डॉक्टर्स की ऑर्गेनाइजेशन है जो इस वक्त हमारे अंदाजे में मदद हो सकते हैं कि जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन. There are multiple societies and associations in the PMA as well. There are multiple. They have their numbers in a lot, but the PIMA is heading all of these societies. I'm also the member of many societies. Like I'm a member of the PMA, I'm a member of the previous president of Society of Surgeons, Pakistan, but they have a less number of members. The PIMA has a largest number throughout Pakistan, have in every province, AJK, Baltistan, and every small area. So it's a very small introduction. That is, PIMA is the largest organization of the doctors, and we have 3-point rules. Number 1, दावत और तरबियत. जो डॉक्टर्स जमा हो जाएं, उनको दावत दी जाए अपने असल की तरफ. डॉक्टर तो हम हैं, अल्लाह ने हमें पैदा किया है. अल्लाह ने पैदा इसलिए किया है कि उसकी इबादत की जाए और उसके रसूल की पैरवी की जाए. तो ये दावत है हमारी, जो हमारी नहीं है, ये तो कायनात जब से बनी है ये दावत. हम भी इसको लेके चले हैं जो सारे अंबिया की दावत थी और जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत है, उसी को PIMA की दावत है. तो जमा हो जाए, इसकी फिर तरबियत की जाए, थोड़ा बहुत इंतज़ाम किया जाए. जैसे मौका देते रहते हैं डॉक्टर शायान और डॉक्टर ज़कीर स्पेशली, आप लोगों को भी और मुझे से नाज़िरों को भी, कि उनकी थोड़ी बहुत तरबियत हम करते रहे. ये पहला नुकता है PIMA का, दावत और तरबियत. दूसरा नुकता है हमारा CM, कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन, जिसका एक थोड़ी सी झलकी या पार्ट है आज भी. हम करते हैं स्मॉल एक्टिविटीज़ एंड बिगर एक्टिविटीज़ लाइक we did in September a big convention at Expo Center, Karachi, which the POB people plays a vital role, like Dr. Shan gives a very good arrangement there for all the hospitality. तो मैं आप लोगों का सबका जो इन लोगों ने पार्ट किया था उसका भी शुक्रगुजार हूँ. तो ये हमारी CME है, Continued Medical Education in all span. We are doing with the collaboration of the CPSP, with the TMDC, with the institutions, with the universities, and all the organizations. Wherever we can put the foot, we try to do it for our members in the
accompanies. This is the second thing. And third is a relief. Third point is a relief कि जहाँ भी कोई disaster, locality, बीमा मौजूद होती है. Like आपने अगर किसी को याद हो, आप में से सब उसको पैदा तो हो गए होंगे. 2005 का ज़लज़ला था, उसका बीमा ने बहुत इमर्ज किया. बीमा 1979 में बनी, लेकिन 2005 के ज़लज़ले में जो बीमा ने काम किया थी, ग्लोबल इमेज जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन आई हुई थी, WHO, UNICEF एंड जो सैन फ्रंटियर्स कौन सी वाली थी, जो डॉक्टर सैन फ्रंटियर्स विदाउट बॉर्डर्स, इन सब के साथ मिलकर और कौन सा था वो उनका, मैं तो भूल गया उनके साथ मैं मीटिंग में लेके वो शरीक रहा हूँ. कौन सा इत्तेहाद है जो अमरीका NATO. So we work them with all these organizations in the relief activity at the 2005 earthquake at Kashmir and KPK, and we emerged well after that moment. Of course, it was established in 1979. तो ये हमारा रिलीफ एक्टिविटी एक झलकी से बताइए, बाकी मुसलसल काम जारी रहता है. यहाँ डॉक्टर राव नहीं आपके पास मौजूद है, नजर नहीं आ रहे, तो बड़ा जेल में भी एक्टिविटी हर रोज़ हर महीने करते हैं मरीजों से. वहाँ पर काम, ये मुसलसल काम जारी है, ये हमारी रिलीफ का हिस्सा है. तो ये मुख्तसर से मुझे बात करनी थी. कोई आपका सवाल अगर हो बीमा के बारे में और किसी चीज़ के बारे में, मैं आऊँ. इसके लिए लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि वो असल बात सुनी जाए. I'm sorry to disturb you, and my apologies because the Jummah prayer are late here. But still, thank you very much. Now I would request Dr. Shyam to come on stage and present a token of appreciation for our presentation. Sir. Dr. Abdullah. So here are the presentations, two presenters this evening, and we want to just give this gift to them. पहले मेरा ख्याल है कि आप आ जाएं. एक प्रोजेक्टर बंद कर. हाँ, प्रोजेक्टर इसको बंद कर. ऐसे ठीक है. प्लीज लाइट ऑन कर. अब बेहतर हो गया. थैंक यू. आपकी प्रेजेंटेशन का और डॉक्टर जिला के लिए for moderating this program session very nicely, right? बहुत शुक्रिया आप लोगों का. मेरा ख्याल है कि डॉक्टर है ना. एक छोटी सी बात मुझे वो तालीम पहले भी याद आई थी. हमारे जो प्रेसिडेंट CPSP हैं, उनके लर्नर पर्सन प्रोफेसर शोएब शफीक, नाउडेज हमारी जो क्लोज मीटिंग होती है ना, वो उसमें कहते हैं कि ये तालीम बजाना जो है अच्छा काम नहीं है. आप लोग सुभान अल्लाह कहें या अल्लाह अकबर, क्या बात है, प्रमोट करते हैं. काउंसिल मीटिंग में भी हमारी उसमें भी मुझे ख्याल आया तो मैंने कहा अच्छा मैसेज आपको भी दे दूँ. तो अब है ना बताएं कि क्या प्रोग्राम को किस तरह से आगे अपने फॉरवर्ड करना है. Most interesting part, hands-on workshop, and we have some case presentation for you guys to examine the patients. तो आप लोग नहीं
कर नहीं रहा है, ये देख रहा है कि कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। बहुत डिफरेंट। हाँ वो है, हाँ वो वाला काला हो गया। ठीक है कोई बात नहीं। अब इसमें ना तीनों नहीं होगा, आप हाँ ये बकरे की आँख है ना, ठीक है। पहले क्या क्या किया तुमने? मैंने भी किया, मैं बकरे की आंखों में, बकरे की आंखों में इंसान की आंखों में भी किया। चलो ये काम करना, ठीक है, ध्यान से। नहीं कहीं मैं चला जाऊँगा। कहाँ कहाँ जा रहे हैं? हाँ चलो तुम अगर उसको बना लो ना, मेन आइडिया वो करो, कंजक्टिवा नहीं होगा इसमें, नहीं इसमें डायरेक्ट वो बनाओ तुम, विंडो बनाओ, विंडो बनाओ, 11 का ब्लेड लो, विंडो बनाओ, 11 का ब्लेड है। हाँ 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 विंडो बनाओ, इसमें नहीं होता, इसमें कंजक्टिवा नहीं होता। हाँ वो नहीं होता। मेन चीज़ होता है आइडिया ना, कि आपको आइडिया हो कि कितना वो ठीक। ओके ओके, सो 11 नंबर ब्लेड, या ठीक है। Good. Okay. So now क्रिसेंट करें या क्रिसेंट से करके देखो। ओके बन रहा है, सही है, गुड। I think
This is a unique idea that we are doing this time for the TREB wet lab. Before it was not. First time in POB. For the TREB. Even in the OSP they are not. इसी पे इसी तरह हाँ अच्छा लेज़र पे है बकरे की उस पे हाँ नहीं नहीं मतलब मैं तो इसको मतलब अभी मैं देख नहीं रहा ना उसको अब वो जब वो ना वो तो और ज़्यादा बेहतर था मैं इसका देखूंगा फ्लैप कैसा है सर मेरे उस्ताद हैं अनीफ साहब हाँ ये वाली मूवमेंट बिल्कुल सही हाँ दूसरे अंग आप कर लेना कैसा बन रहा है शुभ ओके हाँ अब देखूं तो सही ना देखने दो मुझे ठीक है वो रेक्टेंगल बना बहुत ज़्यादा डीप नहीं कर दिया हाँ हाँ टाइट होता है हाँ नहीं नहीं तुम वो बनाओ ना फ्लैप बनाओ फ्लैप बनाने की कोशिश करो इसमें कंजक्टिवा बहुत होता है वो नहीं होता इसमें डायरेक्ट बनाओ फ्लैप उठा फ्लैप नहीं उठा उठ गया ना तो हाँ अब अंदर से विंडो बनाओ क्रिसेंट नाइफ दे दे क्रिसेंट नाइफ दे दे सर डॉक्टर इमरान यूज करते हैं हाँ मैं भी करता हूँ नहीं इमरान साहब नहीं करते इमरान साहब 15 का ब्लेड करते हैं मैं क्रिसेंट करता हूँ आपके लिए तो वो थी ना जैसे रिपीटिशन थी लास्ट वीक हाँ लगा हुआ हाँ मैं अपना कौन है असगर टाइम लिमिट क्या है टाइम लिमिट हाँ तो हो गए ज़रूरी नहीं है एक एक स्टेप आप करें अपने हिसाब से जो है नेक्स्ट कैंडिडेट को बुला लें सलाम अलैकुम क्या हाल है तस्वीर लाइव चल रहा है ये लगा आप थोड़ा लाइव इंस्ट्रक्शन दें फिर ये कि वो क्लैप नहीं आप बताओ अच्छा इस पे आप जब भी बनाएंगे ना फ्लैप बनाएंगे नेवर यूज अ टूथ फॉर्सर क्योंकि टूथ फॉर्सर विल इंजर द फ्लैप जब फ्लैप बना रहे हैं ना स्क्रॉट में पार्शियल थिकनेस बना रहे हैं फ्लैप का वो उसको इंजर कर देगी ठीक है ऑलवेज यूज द प्लेन फॉर्सर जिसके टूथ ना हो इन होल टैप सर्जरी आपको टूथ यूज़ ही नहीं करना
पूरी ट्रैप सर्जरी में नेवर यूज अ ट्रिप। कैंथेटेरा पकड़ेंगे वो उसको काटेगी, स्किल फ्लैप करेंगे उसको काटेंगे, नेवर यूज। इवन पीआई के लिए भी करें तो आप प्लेन फोर्सेप्स से पीआई को उठाएं, ठीक ना। हाँ ठीक। अब नेक्स्ट कैंडिडेट है हमारे पास, आप आ जाएं, आप बैठे, आप शेब इसको ले लें। इनको ग्लव्स दीजिएगा प्लीज़। अब आप यहाँ से स्टार्ट लें, सुपरफिशियल स्क्रॉटमी तो हो गई है, आप डीप बनाएं और पीआई करें। डॉक्टर है ना, कुछ स्टेप्स एक से कराएं, कुछ स्टेप्स दूसरों से कराएं, ताकि सबको चांस मिले, ठीक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब आपका एक्वस आ रहे हैं ना, एक्वस जो है। अब मुझे बताएं डीप स्क्वाट आपने कैसे बनाई है, एक मिनट देखने थे मुझे। सर ये जो है पहले से बनी हुई थी। नहीं डीप 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 तो नहीं बनी ना, सुपरफिशियल फ्लैप। गो फॉर द डीप, फॉर द डीप वर्टिकल कट से आप। नहीं, जहाँ फ्लैप के नीचे देंगे ना वर्टिकल। पंच कैलिपर भी आप यूज कर सकते हैं, मगर थोड़ा डेंजरस होता है। हाँ। इसके लिए भी पहले आपको होल बनाना है, उसके बाद इसको अंदर लेके जाएंगे ना? आप 3.2 नाइफ से आप दे दें अंदर, उससे जाके पंच ले आए। इट्स ओके, इतनी फाइन नहीं है मगर नहीं, पहले आप डीप कंप्लीट तो करें ना। आप आयरस कहाँ से उठाएंगे? हाँ नहीं नहीं नहीं, तो इट्स ओके, यू कैन डू द पीआई, यू कैन डू पीआई, देखें कैच करें। ऐसा भी हुआ कि ये जो स्क्लेरा का फ्लैप बनाया ये जगह से बिल्कुल। हाँ हाँ लेफ्ट हो, ईच एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। पूरा ही उड़ जाए। हाँ अक्सर ये होता है कि आप फ्लैप बना के दो साइड से तो उठा रहे हैं, तीसरा आधा उड़ जाता है ना, तो जो आधा उड़ता है उसको आप सूचर करें। नॉर्मली वी आर गिविंग द 2 सूचर्स, तो देन यू विल पुट मोर सूचर्स, एक सूचर वो करें। First step is periotomy. Excellent. And scissor को ना जितना deep डॉक्टर रियाज, इनको आप बताएं पंच कैलिपर कैसे यूज करते हैं? horizontally. पेशेंट्स को देख लेना होगा अच्छा, एक बार डॉक्टर हसीब ने अपने लेक्चर में बताई थी नहीं, एक पेन को ज़्यादा आपका एक्सपोजर होगा ना, वो तो मैंने नहीं पेशेंट्स को। हाँ ठीक, हाँ बाकी पेशेंट एक्सपोजर इज रियली इम्पोर्टेंट। हाँ उसमें हेजिटेट नहीं करें। नहीं नहीं, मैंने अपने पेशेंट्स तो मैंने कर दिया था। थोड़ा सा ये नेज़ली नहीं हुआ ना, नेज़ली हुआ इसके बाद देख ली सबने? हाँ फारिग कर, आ जाओ आ जाओ, आ जाओ देखना।
मुदस्सिर फारिग करो। वन सीजर के साथ पूरा ये देखें। हाँ, ये टेनिन को जब तक सेपरेट नहीं होगा, वही वाली चीज़ कि अगर खाली जी डॉक्टर पहुंचने लगेगा कैसा रहा आपका? तो एमएमसी और बाद में ब्लड लीक एंड ऑल दैट। ओके, यू विल सी द पेशेंट एंड डिस्चार्ज इट। ओके, ठीक है फारिग कर दें। आप फिर इसको कर लें। और यहाँ पे उज़ैर तो कर दे खुद। असगर आल्सो टेल डॉक्टर सारा एंड डॉक्टर मरियम। अब ये ब्लीड नहीं कर रहा, वरना हम कॉटरी भी करते हैं। कर दिया, फ्री कर दें। जी जी अब कर दें और 2 फॉलो कर ये लें। हर सर्जन टू सर्जन वेरी करता है। हाँ, पोस्ट है ना। हाँ, 2 वीक्स फॉलो कर लें। अच्छा, फॉरसेप्स से ना इतना प्रेस नहीं करें, वो ऑलरेडी आपकी आई सॉफ्ट है फिर और जी। हो गया डॉक्टर मरियम आपका? हाँ, हो गया फिनिश, बस हो गया। इनको यूज़ करने का तरीका बता। 15 है अगर आपको चाहिए तो। नहीं, इथिंग आपको नज़र नहीं आएगा। हाँ, ऑलवेज इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू लुक माय एयर। ओके, फॉर एग्जांपल इस आंख पे आप पेशेंट की राइट आई विल सी योर इस ईयर पे देखें, ठीक है। देन यू विल फोकस ऑन द मैक्युला। फॉर एग्जांपल दिस वन, अगर पेशेंट को आप कहेंगे इस आंख से इस कान पे देखे, देन आपका ऑप्टिक डिस्क देखेगी आपकी, ठीक है। अगर आप कहेंगे कि लाइट को देखे तो मैक्युला देखेगा, ठीक है। डॉक्टर मरियम, इनके बाद पेशेंट को डिस्चार्ज कर दीजिए। इसकी जो है ना हाँ। टिप से स्टार्ट करें और इसकी जेंटल यूं स्ट्रोक्स करें रादर देन यूं जाने के ना, जैसे हम फैको में जाते हैं उस तरह से नहीं। ये आप 15 डिग्री से ही करें, तो ये वाला स्टेप है। आपको भी फ्लैप की हिंज नज़र आ रही है? विदाउट माइक्रोस्कोप जी, आई थिंक इट शुड बी मोर डीपर। विदाउट माइक्रोस्कोप आई कैन नॉट एप्रिशिएट। बस फारिग कर दें, आपको फारिग कर दें। डिस्चार्ज द पेशेंट। हाँ, अब ये डीप है ना, ये आप क्या कर रहे हैं? टेनन उठा रहे हो ऊपर से, ठीक है। आप इसको डीप करें, कर दिया इसको डीप करें, ठीक है। द वर्टिकल पार्ट, द वर्टिकल। हाँ हाँ, डीप नहीं है। यस 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 यस। अब इसके साथ इट्स वेरी स्मॉल विंडो, ठीक है। अभी तो इट्स फाइन, बट ये आप पहना लाइव जा रहा है। ठीक है सर, एक मिनट ठीक है। थोड़ा सा डीप मूवमेंट नहीं करें, थोड़ा। हाँ बस, एक्सीलेंट। अब इसको डॉक्टर मुझे इधर मेरे हाथ यूं चलाएं, यूं नहीं चलाएं। Hello. Hello, 1 2 3. Hello, 1 2 3. Can you hear me?
Can we punch carry my जब हम नीचे करेंगे तो ऊपर देखिए ना ऊपर में थोड़ा गैप है हाँ ये आयरिस अंदर फंसा के पंच करेंगे जैसे वो DCR के अंदर जो पंचेस होते हैं उसका एक्सरसाइज करना है उसको या एक्सरसाइज जो भी करना 11 नंबर 11 स्क्वायर फ्रैग बन गया हाँ जैसे लग रहा था कट करेंगे ना हाँ AC प्लस लेकिन फोर्स से रेजिस्ट करना नहीं
Already sclerized.
मैं तो 10-0 कर सकता हूँ। मैं एक भी बात कर माइग्रेन नहीं करता, लेकिन मोस्टली मैं क्लोज करने के लिए। और देखिए मैं आपको बात करता हूँ, इधर टाइम इधर पैसे एकदम नहीं प्रॉब्लम है, इतना मुश्किल नहीं है सर्जरी का, लेकिन मोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन है या वो बड़ा हुआ इसी का। वैसे आए आपको आपका हाथ चलता रहे और जो उसमें हर स्टेप सर्टिफिकेट नहीं लेने देखिए क्या तो दूसरी आंख नहीं है क्या? अब सीधा एसी में जाएं और पीआई कर लें। हाँ जी, ताकि आइरिस आ जाए। नहीं कैसे एक मिनट सर कैरी स्पंज पर नहीं है ना, कैरी स्पंज क्या हो गया? एक मिनट दिखाओ फ्लैप बनाया, फ्लैप को ऐसे कर हाँ ठीक है। अब आपने वो किया है, एसी में नहीं गई है तो एसी में जाए ना, पहले निक दे
एक मिनट, ये टेली पंच कहाँ है? यहाँ था टेली पंच कहाँ है? टेली पंच तो दो। ये सर निक अब्दुल हादी। अपने थोड़े इंप्रेशन भी बता के जाओ, कोई फायदा हुआ या नहीं हुआ? अच्छा लगा था, काफ़ी लर्निंग एक्सपीरियंस है। R1 भी काफ़ी ज़्यादा हादी कंसिस्टेंसी पीओबी की वर्कशॉप से अटेंड करता है। अच्छा, जब होती है हादी नजर आता है। परमानेंट मेंबर है ये, है गुड। ये अनम अनाम सबको ना भाई दो चार जुमले बोल रहे हैं। हाँ भैया ना, एक 10 तरह होते हैं, कैसा एक्सपीरियंस था? It was good, but थोड़ा सा हैंड्स ऑन कम मिला। जो जूनियर पीजीज हैं उनको हैंड्स ऑन थोड़ा ज़्यादा मिलना चाहिए, but it was good. I was quite happy. इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जरूर मौका मिलेगा। सैयद अहमद, सैयद मोहम्मद फैज, फाइज वे अपने नाम को खुद से पहचाने और आगे आए है कहाँ? हाँ नेक्स्ट बुला, आगे उम्मे आपकी रास्ता ज्वाइन करके जाओ, फिर वो आ रहे हैं। It was a good experience coming here and getting to know about glaucoma treatment. थैंक यू। मैं फरवा She is from Nawab. तो ज़रूरी है इनके पास। बोलो, हमें बोलना पड़ेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं फर्स्ट टाइम अपने सेटअप से बाहर निकल कर कहीं पे आई हूँ, तो इट वाज नाइस एक्सपीरियंस। कौन सा ईयर है तुम्हारा? फर्स्ट अभी पूरा हुआ होने वाला है। बिलाल अच्छा था, बस ये कि आइस कम थी। सिंगल पर्सन को सिंगल आई देनी चाहिए। पूरी तो दी थी इंशाल्लाह। नेक्स्ट बिलाल के अब्बा भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर अबरार। ठीक है। मोहम्मद उसामा इदरीस। अच्छा अबरार के उसामा है, चलेंगे चलेगा। तो पहचानता उसामा को? यस सर, मैं मेरा नाम इलाज भी थी। हाँ तो आओ ना, तुम्हारा गो काम आ गए। वो अभी तक ट्रैफिक लेक्चर में गो में वो सोच रही थी कि मैंने कहना बस रात को कभी कभी होती है। अरे क्या भाई दुनिया में यार रह बोल दो भाई, वहीं से बोल दो। But sir थोड़ा सा ये कि थोड़ा हैंड्स ऑन और मिलना चाहिए। ये सारे जूनियर जो होते हैं थोड़ा टाइम। चल ठीक है। किस असगर असगर राजानी कहाँ है भाई? असगर ये इससे हम पूछेंगे। हाँ भाई, इससे पूछते हैं सुभान अल्लाह के बाद। बोलो भाई। तो ऑर्गेनाइजिंग में थे, इन लोगों को करने का मौका नहीं मिला, लेकिन अरेंज कर दो। चलो थैंक मुदस्सिर इलाज वो प्रैक्टिकली कराएंगे अक्सर असली बात। मुदस्सिर भी एडमिनिस्ट्रेशन में थे, तो इन्होंने ट्रैप तो क्या की, वैसे करा रहे हैं। चलो ठीक है। सारा जी सर।
Now you have to express your feelings in photo. It's your task. बहुत अच्छा लगा जोर से फिर आवाज नहीं आ रही। मैं बहुत अच्छा लगा आज बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। उज़ैर। शायद भी ऐसा मैं एडमिनिस्ट्रेशन में तो मतलब हैंड ऑन तो नहीं किया लेकिन वैसे करते हैं वैसे करा देंगे। ठीक है। कौसर डॉक्टर कौसर मेरी सोच में बोलना पड़ेगा ना कौसर को। सब क्या है इसका नहीं चाहिए कि सर्टिफिकेट ठीक है रह गया शोएब का देख लिया ब्लैंक शोएब नाम क्या आपका पूरा शोएब खान बाबर मरियम ये उससे बुलवा लें इसको तो बोलना बहुत आता है नहीं ये मैं नहीं बोलूँगी मैंने कहा था बोलना नहीं चलो कह दो कुछ कह दो मैं अपनी की तारीफें करूँ या बुराई करूँ तो तुरंत में फंसूंगी इसलिए मैं कुछ नहीं तारीफ करने पे नहीं फंसोगी यार शोएब का क्या रह गया एक मिनट माजरत पिक्चर अच्छी से लो भाई छोड़ दे यार डॉक्टर सरकार नहीं उसने कहा शायद इस बार देख रही है उसने कहा पिक्चर अच्छी सी आज में आ जाओ तो पिक्चर तो हो जाएगा क्या लेकिन नाम तो कोई और आएगा नहीं ब्लर तस्वीर खींच लेना पिक्चर रह गया आगे शोएब आ रहा है एक और लेके और जल्दी से शोएब का शोएब का बनाया हुआ मेरे साथ नहीं है पुराना शोएब का नाम बाद में लिखा सही ऐसे रखते हैं रिकॉग्नाइज यू डॉक्टर मुझे पता था आइए आप आइए डॉक्टर रियाज के साथ मैंने जूनियर रेजिडेंट वर्क किया है नाउ अमेजिंग वर्क ही इज डूइंग ये नहीं पता था ही इज डूइंग दिस काइंड ऑफ लेवल हां ये हालांकि आखिर में जो है हमने ये पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है आई एम रियली वेरी थैंकफुल फॉर योर पार्टिसिपेंट्स बेसिकली आप लोगों के बगैर ये प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं हो सकता था जो शॉर्ट कमिंग्स आप लोगों ने बताई हैं डेफिनेटली उस पर वर्क करने की ज़रूरत है ये बड़ा कॉम्प्रहेंसिव सा था जिसके अंदर प्रेजेंटेशंस भी थी पेशेंट्स को भी देखना था तो उसमें ज़ाहिर है कि हैंड्स ऑन के लिए इतना टाइम नहीं हो सकता था हम इससे पहले हैंड्स ऑन कर चुके हैं एंटीविजेक्टमी के ऊपर और दीगर चीज़ों के ऊपर तो उसमें एवरी कैंडिडेट हैज़ गॉट इनफ टाइम के उसके ऊपर वो पूरा कर सके तो हम इंशाल्लाह ताला इसका सेकंड पार्ट जब करेंगे तो उसमें आप लोगों को जरूर मौका मिलेगा इस प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा हमारे ज़ाहिर है कि इस प्रोग्राम के साथ डायरेक्टर हडसन ने हमें कोऑपरेट किया है इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए उसके लिए मैं स्पेशली थैंकफुल हूँ और मैं चाहूँगा कि एक सर्टिफिकेट साजिद को जो इनके नुमाइंदा हैं ये एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन के तौर पे ये दिया जाए बहुत शुक्रिया साजिद इसका हाथ पकड़ लिया आपने बहुत शुक्रिया हाँ नहीं माशाल्लाह आप शायद से थैंक यू तो पीओबी ज़ाहिर है कि आप लोगों के लिए इनमें से बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम भी आए होंगे ये एक निस्बतन नया इंस्टीट्यूट है ऑप्थेल्मोलॉजी के अंदर जस्ट 7 और 8 ईयर्स में भी लेकिन ये कि इसका प्लान डेफिनेटली जहाँ पेशेंट्स को सर्विस प्रोवाइड करना है वहाँ पे नए जो लर्नर्स बिगिनर्स हैं उनके लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना कि जहाँ पे उनको पूरा सिखाने का एक बेहतर अंदाज में पूरा इंतजाम हो तो हम उस कोशिश में लगे हुए हैं उम्मीद है कि आइंदा भी इस तरह की चीज़ें हम बहुत फ्रिक्वेंटली आप लोगों के लिए ज़रूर प्लान करेंगे इंशाल्लाह थैंक यू